اب آپ کو بتائیں کے ڈی اے لینڈ اور ریکوری ڈپارٹمنٹ سے متعلق سائلین کی شکایات پر ڈی جی ان ایکشن۔ الطاف گوہر میمن کا لینڈ ڈپارٹمنٹ کا ہنگامی دورہ، ڈی جی کے ڈی اے کی جانب سے ڈائریکٹر ریکوری کی بھی سرزنش۔ ڈی جی کے ڈی اے کی سائلین کے کام کو فوری مکمل کرنے اور غیر ضروری رکاوٹوں کو دور کرنے کی ہدایت۔ اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے شعیب مختار سے، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، یہاں کی ڈیولپمنٹ لینڈ اور ریکوری ڈپارٹمنٹ سے متعلق سائلین کی شکایت موصول ہونے پر ڈی جی نے جو ہے وہ ایکشن لے لیا ہے۔ الطاف گوہر میمن نے لینڈ ڈپارٹمنٹ کا ہنگامی دورہ کیا ہے، جبکہ ان کی جانب سے لینڈ ڈپارٹمنٹ نے شکایت کی روک تھام کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات اٹھانے کے لیے جو ہے وہ احکامات جو ہے آج دیے گئے ہیں۔ ڈی جی کے لیے الطاف کا کہنا تھا کہ شکایت ملنے کی صورت میں سابقہ افسر کے خلاف جو ہے محکمہ جاتی کارروائی عمل میں لائی جائے گی، جبکہ ڈی جی کے نے ڈائریکٹر ریکوری بہتاز عامر میمن کی بھی آج کے وہ سرزنش کی ہے۔ ڈی جی کے لیے نے سائلین کے کام کو فوری مکمل کرنے اور غیر ضروری رکاوٹوں کو دور کرنے کی جو ہے وہ ہدایات کر دی ہے۔ ڈی جی کے لیے کی سائلین کے کام کو فوری مکمل کرنے اور غیر ضروری رکاوٹوں کو دور کرنے کی ہدایات جو ہے وہ جی شعیب مختار، بہت شکریہ آپ کا۔ شہر قائد کو روشنیوں کا شہر بنانے کے لیے وزیر اعلیٰ متحرک ملیر ایکسپریس وے، کورنگی کاز وے اور کریم آباد انڈر پاس اہم منصوبے قرار دے دیے۔ پروجیکٹس پر کام تیز کرنے کا حکم دے دیا۔ مجھے ان منصوبوں پر باقاعدہ پیش رفت چاہیے، مراد علی شاہ نے متعلقہ حکام پر واضح کر دیا۔ ملیر ایکسپریس وے فیز 1 کا کام 25 دسمبر تک مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کراچی میں میگا پروجیکٹس کی جلد تکمیل گری کوشاں، ملیر ایکسپریس وے، کورنگی کاز وے اور کریم آباد انڈر پاس اہم منصوبے قرار۔ پروجیکٹس پر کام تیز کرنے کا حکم دے دیا۔ شاہ فیصل کالونی سے ایئرپورٹ تک سڑک ٹھیک کرنے کی بھی ہدایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت کراچی کے منصوبوں پر اہم اجلاس ہوا۔ کریم آباد انڈر پاس، ملیر ایکسپریس وے، کورنگی کاز وے پر بریفنگ دی گئی۔ مجھے ان منصوبوں پر باقاعدہ پیش رفت چاہیے، مراد علی شاہ نے متعلقہ حکام پر واضح کر دیا۔ ملیر ایکسپریس وے فیز 1 کا کام 25 دسمبر تک مکمل کرنے کی ہدایت۔ وزیر بلدیات کو کریم آباد انڈر پاس کی خود نگرانی کرنے کی ہدایات بھی دے دیں۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ کورنگی کاز وے پل کا 30% کام مکمل ہو چکا ہے۔ ملیر ایکسپریس وے پر جام صادق پل سے شاہ فیصل تک تیزی سے کام جاری ہے۔ مینا بازار اور فیصل بازار پر ٹریفک کنٹرول کرنے کے لیے چورنگی بنائی جا رہی ہے۔ فری لانسرز ایسوسی ایشن نے غیر رجسٹرڈ وی پی این پر پابندی کی حمایت کر دی۔ حکومت سے وی پی این پر رجسٹریشن کے لیے تاریخ میں توسیع کا بھی مطالبہ کر دیا۔ صدر ایسوسی ایشن طفیل احمد کا کہنا ہے کہ وی پی این فوری بند ہونے سے معیشت کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ کاوش محمد کی رپورٹ دیکھیں۔ غیر قانونی وی پی این بند کرنے کی تیاری، فری لانسرز ایسوسی ایشن فیصلے کے حامی، رجسٹریشن کے لیے تاریخ میں توسیع کا مطالبہ کر دیا۔ صدر پاکستان فری لانسرز ایسوسی ایشن طفیل احمد کا کہنا ہے کہ وی پی این فوری بند ہونے سے معیشت کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ غیر رجسٹرڈ وی پی این پر پابندی کی تاریخ میں توسیع ہونی چاہیے۔ پاکستان میں کیونکہ بہت سارے ایشوز اور ہوتے ہیں تو ہم یہ اکنامک اس کا تو مسئلہ آئے گا اگر آپ کا انٹرنیٹ بند ہوتا ہے اور آپ نے رجسٹریشن بھی نہیں کروائی وی پی ٹی اے کے ساتھ وائٹ لسٹ، تو آبویسلی اکنامک امپیکٹ تو بہت بڑا کریٹ ہوگا۔ طفیل احمد بولے 20,000 سے زائد کمپنیز اور فری لانسرز وی پی این رجسٹرڈ کروا چکے ہیں۔ پوری دنیا میں غیر قانونی وی پی این پر پابندی ہے۔ پی ٹی اے وی پی این رجسٹریشن میں تعاون کر رہا ہے۔ تو ابھی بھی ہماری اداروں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اس کو ڈیٹس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں، بٹ لوگ ابھی تک جو پی ٹی اے کے مطابق 20,000 سے زائد کمپنیز اور فری لانسرز رجسٹریشن کروا چکے ہیں وی پی این کی۔ تو پی ٹی اے نے بارہا ایون کہ ہم سے ابھی جب ملاقات بھی کی تو انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا، بہت زیادہ وہ ہیلپ فل ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ آئی پی وی پی این رجسٹر کروائیں ہم سے۔ طفیل احمد نے فری لانسرز کو ہدایت کی ہے کہ وہ وی پی این کے استعمال کے لیے رجسٹریشن یقینی بنائیں۔ کیمرہ مین عمران کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔ اب آپ کو بتائیں سندھ بلڈ ٹرانسفیوژن اتھارٹی کا احسن اقدام، اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز میں طلباء کے مفت ٹیسٹ اور آگاہی سیشن کا فیصلہ کیا گیا۔ مقصد تھیلیسیمیا کے پھیلاؤ کو روکنا ہے۔ ابراہیم رند کی رپورٹ دیکھیں۔ نوجوانوں کو تھیلیسیمیا سے بچاؤ کا عزم، سندھ بلڈ ٹرانسفیوژن اتھارٹی کی کراچی سمیت صوبے بھر کے اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیوں میں آگاہی پروگرام اور اسکریننگ کی تیاری۔
सेक्रेटरी सिंध ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी डॉक्टर दुरे नाज जमाल काजी का कहना है कि पहली बार थैलेसीमिया की रोकथाम के लिए बड़े पैमाने पर इकदाम किए जा रहे हैं। इस साल में हमारी जो है काफ़ी ज़्यादा हम इसकी तरफ जो है अच्छी तरीके से बढ़ रहे हैं, इस मंजिल की तरफ कि सिंध को और पाकिस्तान को थैलेसीमिया फ्री करवा सकें। उसमें बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम तो वैसे भी होते हैं, लेकिन हमने पिछले दिनों थोड़ा सा और ज़्यादा इसको स्ट्रेंथन किया कि कुछ सपोर्ट लेके हम लोगों ने यहाँ पे जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे जाके हमने थैलेसीमिया अवेयरनेस पे जो है वो प्रोग्राम किए। साथ में हमने जो है जो हमारे लोकल ब्लड बैंक्स हैं उनके साथ मिलके स्क्रीनिंग भी करवाई। तिबी माहिरीन के मुताबिक हर साल हजारों बच्चे थैलेसीमिया से मुतासर होकर पैदा हो रहे हैं। बीमारी की रोकथाम के लिए बड़े इकदाम जरूरी हैं। कैमरामैन आगा रफीक के साथ इब्राहिम रिन, CT21। सिविल अस्पताल में जदीद तिबी सहूलतों का इफ्तिताह। सेनेटर सलीम मांडवीवाला का कहना था कि पीपल्स पार्टी सिविल अस्पताल के हालात बेहतर बनाने के लिए पुरअज़्म है। मीर कीरियो की रिपोर्ट देखें। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में सेनेटर सलीम मांडवीवाला का कहना था कि पीपल्स पार्टी सिविल अस्पताल के हालात बेहतर बनाने के लिए पुरअज़्म है। MS सिविल अस्पताल कराची डॉक्टर सैयद खालिद बुखारी का कहना था कि अस्पताल में जदीद मशीनरी नस्ब की गई है। कैंसर की तशखीस करने वाली जदीद मशीन 4 करोड़ रुपए की लागत से आई है। ये मशीन वो है जो पूरे पाकिस्तान में हमारे पास हमने परचेज़ की है इसको। उस मशीन में जो है स्पेशली जो है गामा प्रोब मशीन है जो ये डिटेक्ट करती है कैंसर को, और आपने शायद इसकी वीडियो भी पहले देखी होगी, बनाई होगी। तो उसमें यह है कि जहाँ पे हम ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन के दौरान पहले ऑपरेशन से और ऑपरेशन के बाद दोबारा चेक करते हैं ताकि जिस जगह पे लगाया जाता है उस जगह पे अगर कैंसर होगा तो डिटेक्ट होगा, उसमें टोन बजेगी उसकी। सिविल अस्पताल के डॉक्टर्स ने खुशखबरी सुनाई कि अस्पताल में मजीद मशीनरी भी लाई जाएगी। आज जो हमने जो मशीनें दी हैं उसमें गामा डिटेक्शन प्रोब है जो कैंसर की अर्ली डिटेक्शन में हमारी हेल्प करती है। उसके अलावा हमने न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में EEG मशीनें दी हैं, ECG मशीन दी है। सेनेटर सलीम मांडवीवाला का कहना था कि ये इकदामात कराची के अवाम के लिए एक मुस्बत पेशरफ्त है और सिविल अस्पताल में इलाज की सहूलतें मजीद बेहतर होंगी। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ मीर केरियो, CT21। अब आपको बताएं, सिंध असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास 7 अरब रुपए से ज़ायद रकम का रिकॉर्ड फराहम नहीं किया गया। इजलास का तरक्याती फ़ंड बराह रास्त डिप्टी कमिश्नर्स के अकाउंट्स में मुंतकिल हुआ। सिंध का महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज 7,013.455 मिलियन रुपए का 4 सालों का ऑडिट रिकॉर्ड PAC को फराहम नहीं कर सका, जिस पर PAC चेयरमैन निसार खोड़ो ने अरबों रुपए का ऑडिट रिकॉर्ड फराहम न होने पर नाराज़गी और महकमे के अफसरान पर बरहमी का इजहार किया है। PAC इजलास में इंकशाफ हुआ है कि सिंध के महकमा खजाना की जानिब से सालाना ज़िली ADP की मद में रकूम महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज के बजाय बराह रास्त डिप्टी कमिश्नर्स को भेजी गई। महकमा वर्क सर्विसेज के सेक्रेटरी ने ज़िला ADP की रकूम बराह रास्त DCs को फराम होने की वजह से ज़िली ADP का रिकॉर्ड फराम करने से माज़रत कर ली। सेक्रेटरी वर्क्स एंड सर्विसेज की गुजारिश पर 15 दिन की मोहलत दी गई। वर्ल्ड बैंक ने सिंध में 2022 के सैलाब से मुतासरा इलाकों की बहाली के मंसूबों का जायजा लेने का फैसला कर लिया। आलमी बैंक का टेक्निकलिटी वर्क 2 दिसंबर को 5 रोज़ा दौरे पर कराची पहुंचेगा। महकमा आपाशी ने महकमा दाखिला को खतरसाल करके वफ्द को सिक्योरिटी फराम करने की दरख्वास्त कर दी। वर्ल्ड बैंक का वफ्द गडाब के थाना बोला खान 7 और जोही का दौरा करेगा। वर्ल्ड बैंक की फंडिंग से महकमा आपाशी के चलने वाले बहाली के मंसूबों की साइट्स का जायजा लिया जाएगा। इस हवाले से महकमा आपाशी सिंध ने एक ख़त महकमा दाखिला सिंध के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला को इरसाल कर दिया। कराची से रवानगी और जोही से वापसी तक पुलिस सिक्योरिटी स्क्वाड फराम करने की हिदायत की गई है। कराची से जोही और वापसी तक तमाम पुलिस स्टेशन पर फोर्स वफ्द को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराम करेगी। सिंध हुकूमत ने सेक्रेटरी बराए महकमा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन का इजाफी चार्ज मोहम्मद नवाज सोहू के स्पुर्द कर दिया। शहाब कमर अंसारी से इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक सेक्रेटरी महकमा बराए कोऑपरेटिव मोहम्मद नवाज सोहू को सेक्रेटरी बराए महकमा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन का इजाफी चार्ज दे दिया गया। सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन सुहेल अहमद कुरैशी के तबादले के बाद ओहदा खाली था। बद इंतज़ामी ने महमूदाबाद की मरकजी शाहरा की हालत अबतर कर दी।
सीवरेज लाइनों की तनसीब के बाद सड़क तामीर न हो सकी। कराची में बल्दियाती नुमाइंदों के नामुकम्मल तरक्याती मंसूबे आवाम के लिए दर्द सर बनने लगे। महमूदाबाद में सीवरेज सिस्टम तो दुरुस्त हो गया, लेकिन सड़कों की तामीर न की जा सकी। इलाका मकीन कहते हैं धूल मट्टी से जीना मुहाल हो गया। बल्दियाती नुमाइंदे काम तो कर रहे हैं, लेकिन सड़क तामीर नहीं हो रही। हुकाम महमूदाबाद की सड़क का मुस्तकिल हल तलाश करें। धमाका खेज मवाद बरामद होने का मुकदमा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम अशरफ को 28 साल कैद की सज़ा सुना दी। 14 साल इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट जबकि मज़ीद 14 साल धमाका खेज मवाद पर सज़ा सुनाई गई। अदालत ने मुलजिम पर मजमूई तौर पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद कर दिया। इस्तगासा के मुताबिक पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार किया था। गुज़श्ता साल मुलजिम को सज़ा सुनाई गई थी, ताहम इसने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने अदालत ट्रायल कोर्ट को मुलजिम और गवाह का दोबारा बयान रिकॉर्ड करने का हुक्म दिया था। मुलजिम के खिलाफ थाना सईदाबाद में मुकदमा दर्ज किया गया। मॉडल कोर्ट गरबी में डकैती और लूटमार के मुकदमे की समाअत हुई। वकील सफाई और सरकारी वकील अदालत में पेश हुए। मुलजमा सहर खान उर्फ ताहिर खान को वीडियो लिंक के जरिए पेश किया गया। मुकदमे के गवाहान अदालत में पेश नहीं हुए, जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया। अदालत ने गैर हाजिर गवाहान की तनख्वाहें रोकने का हुक्म दे दिया, जबकि अब तक पेश न होने वाले गवाहान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। अदालत ने केस की समाअत 27 नवंबर तक मुलतवी कर दी। गुज़श्ता समाअत में मुलजिम की जानिब से बरीयत की दरख्वास्त दायर की गई थी। मुलजिम के खिलाफ थाना मोमनाबाद में मुकदमा दर्ज किया गया था। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गरबी की अदालत में कत्ल के मुकदमे की समाअत हुई। मुलजमा हब्बार रहमान अदालत में पेश हुई। मुलजिम ने सेशन अदालत से जमानत हासिल कर रखी है। मुतवफ़ी की बेवा भी अदालत में पेश हुई। वकील सफाई की जानिब से समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त दी गई। अदालत ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। आइंदा समाअत के लिए तमाम गवाहान को सुमन भी जारी कर दिए गए। अब आपको बताएं, शहर कायद में गैस लोड शेडिंग अपनी जगह, SSGC की जानिब से गैस के लंबे चौड़े बिल भेजने का सिलसिला भी रुक न सका। सुई गैस कोरंगी मेगा सेंटर पर शहरी अपने घरों के बिल दुरुस्तगी के लिए चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। तफसीलात जानेंगे अयाज राना की इस रिपोर्ट में। गायब रहने पर भी मीटर चालू, चूल्हा जले या ना जले बिल तो आएगा। कराची वाले गैस के जायद बिलों से परेशान, अवाम SSGC मेगा सेंटर के चक्कर लगाने पर मजबूर। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस बंदिश मामूल। शहरी गैस लोड शेडिंग के बावजूद भारी भरकम बिल आने पर बरस पड़े। अवाम का कहना है कि SSGC भारी भरकम बिल भेजने से बाज नहीं आ रहा। एक दफा बिल बन जाए, गैस कंपनी वाले बिल कम नहीं करते। बिल कम करने के बजाय किस्तें कर दी जाती हैं। हमारा बिल आया 49,000 रुपए। वैसे हम अमूमन आते हैं 800, 900, 1200 रुपए। इस मरतबा 49,000 304 यूनिट आए, जो कि हमारा सिर्फ ऑफिस है, सिर्फ 2 टाइम की चाय बनता है। इतनी बिल आता हमें भरना पड़ता है। यहाँ पे हर महीने चक्कर लगाते हैं, लेकिन हर महीने वही बिल आ रहा है, कम कोई नहीं होता है। इतने परेशान होते हैं, परेशान होकर यहाँ पे धक्के खाते हैं। फिर उनका कहना यही होता है कि भाई बिल भरना है आपको। ये परेशानी है बहुत ज़्यादा, लेकिन हम फिर भी बिल भर रहे हैं। 82,000 का बिल हो गया, हमने भर नहीं पर सके 12-12, 15-15 हज़ार कहाँ से भरें। शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि महंगाई के दौर में गुजारा करना मुश्किल हो गया है। कम से कम गैस के बिलों में कमी करके आवाम को रिलीफ दिया जा सकता है। कैमरामैन कयूम शेख के साथ अयाज राना, सिटी 21। कराची में गैस और बिजली की किल्लत ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। लोड शेडिंग के बावजूद भारी भरकम बिलों ने शहरियों की कमर तोड़ कर रख दी। तफसीलात जानेंगे उसामा मलिक की इस रिपोर्ट में। कराची में गैस और बिजली के मसाइल बरकरार, शहरी आज भी लकड़ियों पर खाना पकाने पर मजबूर। शहर के मुख्तलिफ इलाके औरंगी, बल्दिया, महमूदाबाद, लांडी, कोरंगी और दीगर बिजली और गैस के मसाइल की जद में। शहर में बिजली बंदिश का दौरानिया 8 से 10 घंटों तक जा पहुँचा। 8.5 घंटों से जायद गैस गायब रहने लगी। शहरी कहते हैं गैस की अचानक बंदिश और प्रेशर में कमी ने जहनी अजियत में मुब्तला कर दिया। बिजली की मुतादिद बार बंदिश से मामूलात जिंदगी धरम भरम, भारी भरकम बिलों ने कमर तोड़ दी है। लोडिंग का जो शहरी लोगों को वास्ते बहुत मुश्किल आए,
गैस लेट करना तो आते न जाते बहुत मुश्किल में होते हैं, तो मेहरबानी करके कि शहरी लोगों के पास इन दो चीज़ों का अशद भी ज़रूरत, इसको चलाना चाहिए। यहाँ पे बिजली का और गैस का लोड शेडिंग बहुत है और मीटर चेक करने वाला भी नहीं है, और आते कितना बिल बेचते हैं तो वो हम गरीब लोग हैं, हम क्या करेगा। गैस की काफ़ी लोड शेडिंग हो रही है, तो उसकी वजह से हमारी कोई इतनी तनख्वाह भी नहीं, ना कोई हम मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, और हमें जो है ना जेबों से बाहर होटल से लाना पड़ता है, तो हमारे काफ़ी मुश्किलात हो रही है। तर्जुमान सुई साउदर्न के मुताबिक गैस की बिला तातुल फरहमी के लिए लाइन पैक को बेहतर बनाया जा रहा है। तर्जुमान की इलेक्ट्रिक का दावा है कि शहर के 70% इलाकों में बिजली की फरहमी बिला तातुल जारी है। जिन इलाकों में लोड शेडिंग है वहाँ बिजली चोरी और बिल क्लियर नहीं। कैमरामैन राना झांजेब के हमरा उसामा मलिक, सिटी 21।